First of all, my dear brothers, I give thanks to you because you spend your time to collect this very important issue which is going on in Jampui Hill. And I only want to disclose the point which is going on in Jampui Hill. Tripura and Mizoram interstate dispute problem. I don't want to disclose others matter, but only that point I want to give some information and some demands on behalf of TPF and on behalf of our Triprasa. This is very unfortunate for our Triprasa that Tripura is geographically surrounded by Bangladesh in three sides, and other sides Assam, and one side Mizoram. Peacefully we are living for a century during king reigns, as well as this 70 years political control. But this time it is very much essential to come over here and focus something very sensitive issue, because every time the nearby our brother northeastern Mizoram problem is shown in many news and many medias, our brew problem also somewhat now not completely solved, but again started the interstate dispute border problem. So this time, on behalf of Triprasa as well as TPF and my fellow Tripura, we all unitedly come forward and try to find out the main policy who is doing all this thing. I want to invite all the Triprasa to come forward and fight for our rights. This is illegal now, which is going on in Jampui Hill, Phuldung Se village. We heard that this already the government approval letter is already submitted, but action is not taken yet. So we must be very carefully, sensitively, we must go forward to solve the problem. Peacefully we want, but if not, if government doesn't take sensitive initiative for this problem to solve, then we, the Triprasa, TPF and other organizations will take action very soon. We'll move till the problem is solved. So I request the Mizo brothers, Northeastern brothers,
come forward and have a peace talk immediately, and let's try to solve the problem soon before it bursts into a large problem. It may be it may not be very known by others, but for us it is very important that our land is already occupied through various policy. So we must go and solve this problem immediately in many ways and many laws, many ways we can go to solve this problem. So lastly, I want to request our state government as well as India government to come forward immediately and solve the problem. Otherwise, we'll move as our own way. So this time, I want to conclude with this message. Please come forward, Tripura, and fight for our land, Tripura, which is illegally captured by Mizoram government, as well as Jampui Hill, Phuldung, Sei village area is already captured. So only document is not enough, only submit report is not enough. It is necessary to come in action immediately. That's our demand. So thank you. नमस्कार आप सभी को। यहाँ पर जो उपस्थित हम लोग के जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं, मैं यहाँ पर जो आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो यहाँ पर हम लोग TYPC, TIPRA और TPF को लेकर जो ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, उसके तरफ से आप लोगों को स्वागत और शुभकामनाएं। आज का ये जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मूल विषय है उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से वाकिफ़ होना चाहिए, क्योंकि आज जो विषय को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है, जो हमारे राज्य के सारे लोगों के लिए, हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए, हमारे राज्य के शांति और समृद्धि के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो आप ये देख सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसमें लिखा है, जो SDM कांचनपुर ने लिखा है, DM धर्मनगर, जो नॉर्थ त्रिपुरा का, जो धर्मनगर में बैठते हैं, नॉर्थ त्रिपुरा को DM को ये लिखा है। इसमें ये लिखा गया है, मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुनाता हूँ। रिगार्डिंग असेंबली इलेक्शन इन मिजोरम एंड इंक्लूशन ऑफ फुलदेंगसाई इन पार्ट 37 ऑफ हाचेक ST कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका मतलब ये है कि जो मिजोरम में जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें जो हाचेक ST कॉन्स्टिट्यूंसी है, 37 पार्ट का जो हाचेक कॉन्स्टिट्यूंसी जो जम्पू हिल एरिया में है, उसको इंक्लूड करने के लिए, जो आप लोग आपको समझ में आया होगा, ये एक्चुअली ये जो इनको ये प्रस्ताव रखा है, ये बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही मतलब क्या कह सके, इसको बहुत ही स्क्रूटिनी करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिखा है फुलदेंगसाई विलेज
VC has added as a part of constituency as Jompui Fuldongsei. 130 voters in the electoral roll of Jompui Fuldongsei are residents of Tripura. They are present in electoral rolls of Tripura in Arwaro Fuldongsei Village Council and avail ration facility from Fuldongsei ration shop under Kanchorpur subdivision. मतलब जो 130 वोटर्स हैं फुलदंगसी एरिया में वो त्रिपुरा के वासी हैं, त्रिपुरा में रह रहे हैं, त्रिपुरा का रेशन शॉप का सारे फैसिलिटीज़ वो लोग पा रहे हैं. करेंटली द PWD रोड लीडिंग टू काम्पुई बॉर्डर विलेज ऑफ जम्पुई Hill RD block is regarded as the boundary between Tripura and Mizoram Fuldongsei, where the eastern side belongs to Mizoram and western side is Tripura. Traditionally, Fuldongsei village as a whole has been accepted as a part of Tripura. Hence, the inclusion of VC, Village Council, and its residents in Mizoram electoral rolls seems to be problematic. ये लिखा है SDM ने DM को. तो मैं इस विषय पर अपने जो राज्य सरकार है, जो हमारे मेरे माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे भारत सरकार को भी इस विषय में उनको ये आगाह करना चाहूँगा कि जो ये लेटर में लिखा गया है, जो ऑफिशियल लेटर में लिखा गया है, इसका ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और उसको इसके ऊपर बहुत ही जल्दी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे त्रिपुरा का टेरिटरी का मामला है. इसमें मतलब पहले ये थोड़ा क्लियर कर दें कि इस लेटर के हिसाब से जो SDM ने ये चिंता जताई है कि यहाँ पर एक मतलब एक तरह का षड्यंत्र चल रहा है कि त्रिपुरा के टेरिटरी को, त्रिपुरा के लोगों को मिज़ोरम के वोटर राइट्स दिया जाए. ये लोग पहले मतलब त्रिपुरा का वासी होके, त्रिपुरा का रेसिडेंट होके, त्रिपुरा में वोटिंग राइट्स पाकर वो कैसे मिज़ोरम का वोट में इलेक्शन कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा का षड्यंत्र चल रहा है त्रिपुरा के इंटीग्रिटी के खिलाफ. त्रिपुरा के तो एक जो जम्पुई हिल एरिया को वो एक मिज़ोरम के एरिया में दाखिल करने के लिए या फिर मिज़ोरम का पार्ट करने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है, जो हम लोग ये पूरी तरह से विश्वास रखते हैं. हमारा जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं आज, TOIPC हो, तिपरा हो और TPF हो, वो ये पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि ये एक षड्यंत्र है हमारे त्रिपुरा के सुरक्षा के खिलाफ, हमारे त्रिपुरा के लोगों के खिलाफ, और इसके ऊपर जल्द ही कार्रवाई होना चाहिए. हम लोग ये मांग रखते हैं कि जल्द ही जम्पुई हिल एरिया में एक पुलिस स्टेशन या फिर एक आउटपोस्ट बनाया जाए, तुरंत बनाया जाए, और वहाँ के लोगों के सुरक्षा के लिए, वहाँ के टेरिटरी के सुरक्षा के लिए एक संपूर्ण रूप से एक पुलिस कार्रवाई किया जाए. और हम लोगों ने कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ये मांगे भी चल रहा है कि जम्पुई हिल एरिया को टेरिटोरियल काउंसिल, जम्पुई मतलब मिज़ो टेरिटोरियल काउंसिल के अंदर शामिल करने के लिए ये मांगे भी बहुत दिनों से यहाँ पर उठ रहा था. तो इन सारे विषय को लेकर हम लोगों ने ये सुझाव रखा है कि हम लोग राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये मतलब ये आवेदन करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक कार्रवाई किया जाए, इसके ऊपर एक एक्शन लिया जाए. और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर जो हमारे ब्रू लोगों के लिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो न्यू दिल्ली में जो 16 तारीख को जो एग्रीमेंट पास हुआ है, जो एग्रीमेंट किया गया है, जो क्वाड्रिपार्टाइट जो 4 कॉर्नर जो एग्रीमेंट हुआ है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और ये ब्रू के लीडर्स और ये मिज़ोरम सरकार के बीच में कि त्रिपुरा में पूर्ण तरीके से उनको सेटलमेंट दिया जाएगा. तो अभी तक उसमें लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर सारे फॉर्मेलिटीज़, सारे ऑफिशियल काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद वहाँ पर त्रिपुरा में जो जगह पर वो रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जो जगह पे परमानेंट सेटलमेंट किया जाएगा. लेकिन अभी तक 6 महीने से ऊपर बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मतलब
कोई पॉजिटिव स्टेप या फिर सरकार की तरफ से क्या स्टेप ले रहे हैं, कोई भी सेटलमेंट प्रोसेस, वो कोई मतलब कोई प्रोग्रेस हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग इसमें भी हम लोग ये आवेदन करना चाहते हैं राज्य सरकार को, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जितना भी यहाँ पर जो लैंड अलॉट हुए हैं और जहाँ पर ये जो लैंड उनको लिए सेटलमेंट के लिए जो सिलेक्ट किया गया है, उन पर जल्द से जल्द उन लोग हमारे ब्रू लोगों को वहाँ पर सेटलमेंट किया जाए। और जो पैकेजेस हैं, और हम लोग को ये भी मतलब सूचना मिले है कि जानकारी हुआ है कि वहाँ पर अब भी जो हमारे ब्रू लोग हैं उन पर ठीक तरह से राशन और ये जो रिलीफ फैसिलिटीज़ हैं उनको ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है। उन लोग रेगुलरली वो लोग उनको जो हक है, उनको जो मिलना चाहिए, जो रिलीफ फैसिलिटीज़ हैं, उन लोग को मिल नहीं पा रहा है। तो उस विषय पर भी मैं राज्य सरकार का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये सब प्रॉब्लम जैसे कि हमारे ब्रू भाइयों को नहीं हो, उन लोगों को अच्छी तरह से पूरी वो लोग हमारे देश के नागरिक हैं और उनको हक है पूरी तरह से उनका रिलीफ मटेरियल जो भी हो, पैकेजेस जो हो, उनको दिया जाए। और यहाँ पर जो और एक चिंता का विषय है हमारे राज्य में, हम लोग रोज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, नारी के खिलाफ जो यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। वो ज़्यादा मतलब हम लोग देख रहे हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही चिंता से अपना बहुत ही आभार के साथ राज्य सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन विषय पर भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें और जो क्रिमिनल्स हैं, जो मेन कल्प्रिट्स हैं, उनके ऊपर अच्छी तरह से कार्रवाई हो और हमारे बहन, बेटी, माँ सबको न्याय मिले, हम लोग यही चाहते हैं बस। और ठीक है, मेरे ये जो यहाँ पर जो मेरे मित्र हैं, जो हमारे जो प्रोसेस हैं, वो अच्छी तरह से आप लोग को फिर से बताएंगे। जो